आज द टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, charge q. So you need to find the electric field. You need to find the electric field at points outside the sphere, on the sphere and inside the sphere. Means electric field कहाँ कहाँ पता करना है? बाहर पता करना है स्फीयर के, ऑन द स्फीयर पता करना है और इनसाइड पता करना है. तो कैसे करेंगे हम इसको, कैसे प्रोसीड करेंगे? यूजिंग गॉस थ्योरम वी आर डूइंग दिस. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आता है ये. तो दिस इज योर स्फीयर, हॉलो स्फीयर इट इज. हॉलो स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज सिर्फ स्फीयर के आउटसाइड रहता है, इनसाइड यू डोंट हैव चार्ज. तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास. दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फीयर. इसका स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो r है और चार्ज ऑन द स्फीयर q है. q is charge on the sphere and radius of the sphere is r. So how will you start? Suppose we have to find the electric field at 3 points. Suppose we have to find the electric field at 3 points. Number 1, outside the sphere. So what I am doing here, I am making a Gaussian surface. Suppose this is a point P outside the sphere. I am joining this point to the center of the sphere. Since the electric field of this hollow sphere is going outside, so I will make this as a Gaussian surface. This is the Gaussian surface which I am making. This is a imaginary hollow sphere which I am making. On this hollow sphere, imaginary hollow sphere, I am taking a small patch. This small patch having an area vector ds outside. Area vector outside. The electric field due to this hollow sphere is also radially outwards. So electric field is also in the same direction of the area. The angle between E and ds is 0. The electric field, this electric field is due to the charge on this hollow sphere. This ds vector is the area vector due to this imaginary hollow sphere. Imaginary hollow surface, we call this as Gaussian surface. So this is the diagram which you have to make. One thing you need to write, this distance O to P, I am writing it distance as r. In the first case, outside the sphere, small r is greater than capital R. You can see as this point is outside, so capital R distance is this much and small r distance is more than capital R. That's why we are outside. So from start, how will you start? Since you are driving by taking consideration of Gauss theorem, so I will start from Gauss theorem. I write here as according to Gauss's theorem. Integration over the closed surface E dot ds is equal to q inside divided by epsilon naught. This is the Gauss theorem. So E dot ds is equal to q inside divided by epsilon naught. Now you know the angle between E and ds is 0. If you open this dot product, it will be E ds cos 0. Integration over the closed surface E ds cos 0 is equal to, what is charge inside this bigger sphere? The charge inside the bigger sphere is the charge on the sphere basically. जितना charge sphere के ऊपर है
वही चार्ज इस बड़े स्फीयर के अंदर है. तो चार्ज विल बी q over epsilon naught. Q is a charge on this sphere. E is constant on the Gaussian surface. I'm taking E outside. E will be outside. Integration of ds is equal to q divided by epsilon naught. So value of E. What is area of the bigger sphere? Area of bigger sphere is 4 pi r square. So I'm writing integration of ds is actually the integration over the whole bigger sphere. The radius of bigger sphere is small r. So area will be 4 pi r square. So it is q by epsilon naught. So electric field you can easily calculate 4 pi r square. I'm taking down q over 4 pi epsilon naught r square. So you can see electric field outside the sphere is proportional to 1 by r square. Means this that if you go outside the sphere, the electric field is decreasing with respect to the distance, with respect to the center of the hollow sphere. The distance which we have taken is from the center of the hollow sphere. Please remember this thing, not from the surface. Okay, so this is the first derivation, first part of the derivation outside the sphere. Second derivation is second part on the sphere, on the surface. On the surface means you have this sphere, it is charged. Radius is capital R, charge is Q. So for your second case, small r is equal to capital R. Means the Gaussian surface which you are making, this Gaussian surface is actually on the sphere. The radius of the Gaussian surface and radius of the sphere are same. So just replace this R by capital R, you'll get electric field on the surface Q over 4 pi epsilon naught R square. Just replace small r with capital R. One more thing which is very important in this case is that the surface charge density. If I ask you what is surface charge density of this hollow sphere, you will say surface charge density is sigma. It is charge divided by surface area, 4 pi r square of the sphere. Sigma is q over 4 pi r square. See, q over 4 pi r square is here. You can see. So the electric field on the sphere is sigma over epsilon naught. Remember this also, I will be using this very soon. That electric field, what is the value of electric field on the surface? Your answer is it is sir sigma by epsilon naught. Electric field depend on surface charge density. याद रखना, ये बात मैं पूछूंगा. अभी तो आपको ये याद रखना है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी मैं पूछूंगा आपसे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें. सो दो डेरिवेशन, दो पार्ट्स हमने कर लिए. हमने बाहर पता कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ऑन द सरफेस पता कर लिया. ऑन द सरफेस इट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है अभी तक. हम अंदर देखते हैं अंदर कितना होता है, उसके बाद हमें अच्छे से पता लग जाएगा. देखो बेटा अंदर कैसे पता करेंगे अब. दिस इज योर थर्ड पार्ट inside the sphere. Inside the sphere means small r less than capital R. That means this is your sphere. This is your radius. Charge on the sphere is q. But you are inside the sphere. Suppose this is the point where you are. This is your r. If you make a Gaussian surface and you make this small ds vector,
again, and you write Gauss theorem as integration E dot ds is equal to q inside divided by epsilon naught. ये लिखोगे आप, साथ ही आप मेरे को कहोगे सर ये चार्ज तो सारा बाहर है स्फीयर के, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं है, गॉसियन सरफेस तो के तो बाहर है सारा चार्ज, तो आप कह सकते हैं q inside 0 है. If q inside is 0, therefore E dot ds is 0. If E dot ds is 0, you can easily write E is 0. यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है. ठीक है, एक मैं और बात आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो के अंदर होता ही नहीं है. इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ, स्फीयर को कंसीडर करके अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये आपका स्फीयर है, ये रेडियस है स्फीयर का r, तो आप ये कह सकते हैं कि सर सेंटर से लेके सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E 0 है. जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये वैल्यू जो मैं दे रहा हूं, दिस वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको ले सकते हो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. देखो मैंने कहा था मैक्सिमम, जैसे ही सरफेस पे पहुंचे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है आगे जाते हुए. देखो यहां से लेके यहां तक ये जो इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r लेस देन कैपिटल R. जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. और इसके बाद जो आगे का पॉइंट है, दिस इज स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R. जब आप स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R में हो तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर होता है. तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है. देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इधर भी स्टडी करोगे, इस तरफ भी स्टडी करोगे, तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही आएगा. यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सरफेस तक, ये पॉइंट तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं. उसके बाद एकदम से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद डिक्रीज होगा. E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर. तो कहने का मतलब इतनी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, इधर भी है इधर भी है. ये जो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जिसमें पहले है फिर नहीं है फिर है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि वन एग्जांपल व्हिच एक्सप्लेन्स द डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कह सकते हैं हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं है, फिर एकदम से ज्यादा आ गया, फिर कम है. तो ये याद रखिएगा बेटा, ये 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है. ठीक है, आई विल अपलोड दिस डेरिवेशन सून, तो ये आपको आना चाहिए. ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो. हाँ जी प्रभनूर. आ गया सर समझ. ओके बेटा, अब देखो अगर आपको यही क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का क्वेश्चन आपको आ जाए, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आपके पास सॉलिड स्फीयर है. अब सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में कोई फर्क नहीं मानता मैं. कब तक? जब तक आप आउटसाइड हैं या जब तक आप ऑन द सरफेस है. मतलब यही डेरिवेशन आपको सेम करनी है, दोनों डेरिवेशन सेम करनी है. ठीक है, बस सॉलिड स्फीयर में एक चीज याद रखनी है आपको, जब आप बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर, तो जो चार्ज आप बाहर भी दिखाते हो ना, चार्ज आपने हमेशा बाहर दिखाया है, लेकिन इस केस में चार्ज अंदर भी दिखाना है. सॉलिड के अंदर भी होता है चार्ज, याद रखना ये बात. तो मतलब अगर आप बाहर हैं तो जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा, बड़ा गॉसियन सरफेस बनेगा, उसके अंदर चार्ज यही होगा Q. अगर आप ऑन द सरफेस भी हैं तो भी चार्ज टोटल अंदर ही रहेगा, स्फीयर के अंदर ही. एक तरह से गॉसियन सरफेस ऑन द सरफेस है तो सरफेस के अंदर ही है सारा चार्ज. कहने का मतलब तो यही है. तो ये दोनों केसेस सॉलिड में भी, ये दोनों केसेस सेम है. यानी डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम आएगी दोनों. आउटसाइड द स्फीयर सेम चलोगे, ऑन द स्फीयर सेम चलोगे.
बट आप क्या करोगे, नहीं, जब आप ऑन द स्फीयर करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये करोगे ना आप। पर यहां पे आप सिग्मा नहीं ले सकते जी। क्यों नहीं ले सकते? सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज ओवर सरफेस एरिया, लेकिन चार्ज ये सरफेस पे थोड़ी है, तो अंदर भी है चार्ज, तो आप सिग्मा नहीं लोगे, इस केस में आप रो लोगे। रो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, ये फैक्टर लोगे आप। अब ये फैक्टर यहाँ अभी नहीं बन रहा, बनाते हैं हम, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तो नहीं बन रहा यहाँ पे। मतलब R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ये फैक्टर इसके साथ। यानी आपने ये वाला जो मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वाला कॉन्सेप्ट किया है, ये हॉलो में करना है, सॉलिड में नहीं करना है। सॉलिड में आपको सिर्फ ये लिखना है बस, Q/4 पाई R स्क्वायर को गलती से सिग्मा मत कर देना, क्योंकि इसमें सिग्मा नहीं है, इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो ये गलती नहीं करनी, पहली बात। जब आप कब काम कर रहे हैं? जब आप सेकंड केस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कर रहे हैं। अब हमारा आ गया थर्ड केस। फर्स्ट केस में तो हम करते ही नहीं है। फर्स्ट केस में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 4 पाई R स्क्वायर जो है वो बड़ा स्फीयर है, बड़े स्फीयर का वॉल्यूम ज्यादा है, चार्ज अंदर है, तो ये यहाँ पे भी नहीं लग सकता, ये वाला कॉन्सेप्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जी, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कर रहे हैं तो यहां अभी रुकोगे, आप इतना ही करोगे इसमें। अब आ गया केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यानी यानी क्या केस क्या है ये देखो, इसमें आपके पास ये बड़ा स्फीयर है, फुली चार्ज, टोटल चार्ज जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर में, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये हमने बात पहले ही कर ली कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है Q/4/3 पाई R क्यूब करके 3 ऊपर ले जाओ, 3Q/4 पाई R क्यूब भी लिख सकते हो आप इसको आप लिख सकते हो 3Q/4 पाई R क्यूब लिख सकते हो आप इसको, पहले लिख के रख लो रो को। अब आप क्योंकि स्मॉल r इज लेस देन कर रहे हो कैपिटल R, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम अंदर हैं, ये आपका R है, सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस वो R है, चार्ज पूरे स्फीयर पे चार्ज Q है, लेकिन हम तो अंदर हैं, तो हमारा गॉसियन सरफेस ये है, ये स्मॉल r है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप गॉस थ्योरम लगाते हो तो E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ये। यानी आपको ये जो छोटा स्फीयर है इसके अंदर चार्ज ढूंढना पड़ेगा, कितना चार्ज है इसके अंदर। वो कैसे ढूंढोगे आप? पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। E और ds के बीच में वही एंगल 0 है, E आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड को मान लो आप Q डैश कह रहे हो, Q डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके अंदर चार्ज Q डैश है, ये मान लेते हैं अभी हम। E की वैल्यू हमने निकाल ली है Q/एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई R स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, वो मैं नीचे लिख दिया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कहानी अब कहाँ रुकी हुई है? कहानी यहाँ रुकी हुई है सर, ये कितना है Q डैश, कितना है Q डैश बताओ यहाँ पे कितना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, आप कहोगे 4/3 पाई R क्यूब, टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है Q, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा Q/4/3 पाई R क्यूब। हमने कितने वॉल्यूम में निकालना है? हमने निकालना है 4/3 पाई R क्यूब में हमने निकालना है, तो यूनिटरी मेथड से आपने निकाल लिया 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये कट गया सारा, तो ये क्या बन गया Q/R क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब, यानी Q/R क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब। ये जो आपने फैक्टर निकाला है ये फैक्टर आपका Q डैश है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज हमने कितना माना है? Q डैश माना है, और चार्ज हमने निकाल लिया Q डैश। Q डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल Q/R क्यूब ओवर R क्यूब, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। बाकी नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर नीचे है, तो क्या क्या कट गया देखो, ये तो कट गया R क्यूब से R क्यूब स्क्वायर से, तो नीचे क्या बच गया? E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बच गया।
और यहाँ एक स्मॉल आर भी बच गया, ये वाला स्मॉल आर भी बच गया यहाँ पे। तो यहाँ से ये पता लग गया हमें, देखो ये देखो थोड़ा सा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये देखो 3Q4πr3, ये सारा फैक्टर हमें मिल गया, देखो मिल गया ना। इसको क्या कह सकते हो आप, इसको रो कह सकते हो। तो रो यहाँ पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो स्मॉल आर ओवर एप्सिलॉन नॉट 3। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एप्सिलॉन नॉट का यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया। अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। देखो एक कहानी और बन गई। मतलब जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो, जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जा रहा है, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है बाहर। पिछले केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। यहाँ पे आप कैसी डायग्राम बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप इस तरह से बनाओगे। देखो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये आपका हॉलो स्फीयर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर फुल्ली चार्ज्ड। ठीक है जी। और ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है। तो कहने का मतलब कैपिटल आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है पहले। E इज प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ हो जाता है वो मैक्सिमम। यहाँ वैल्यू कितनी होती है, Q/4πε0r²। और उसके बाद बिल्कुल जैसे वो कम हो रहा था वैसे ये भी कम हो रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने, बहुत ध्यान से। ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये जो इतना इधर है दिस इज स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये अच्छे से डायग्राम बना के, पूरा डायग्राम बना के पेपर में पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर ये दोनों एकदम अच्छे से ढंग से करके आने अगर आ जाता है आपको पेपर में। ठीक है, बाकी मैं फोटो सेंड कर दूंगा। हाँ जी पूछो प्रभनूर जी, कुछ पूछना है? नो सर। ओके बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब प्रभनूर बेटा हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस करने हैं अभी। क्या क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, वो हमें थोड़ा सा आपको मतलब देखना है, समझना है चीज को कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को ऑपरेट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किस तरह से आप कर रहे हो, ध्यान से देखना। मैं अब तुम्हारे साथ 3 एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा प्रभनूर। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में कोशिश करेंगे हम 3 एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हमने करनी है। उसके बाद हम लोग मतलब मेन क्लास है हमारी 11:15, नहीं अभी तो है टाइम, है ना, 12:45 करीब है। ठीक है हमारे पास टाइम, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा हो गया टाइम। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा प्रभनूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं तीनों। ठीक है, इनसे आपको ये समझ आएगा कि गॉस थ्योरम को एक्चुअल में, गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, गॉस थ्योरम एक्चुअल में हमें क्या बताती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम्स अगर आप ढंग से समझ लेते हो तो आप काफी कुछ समझ लोगे, काफी चीजों के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, तीनों प्रॉब्लम्स को ध्यान देना है आप सबने। ठीक है, कैसे ध्यान, क्या चीज करनी है। एसएल अरोड़ा में से ही मैं ले रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स तीनों। ठीक है, एसएल अरोड़ा की ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, समझना है तीनों को ढंग से, समझ के काम करना है। मैं करता हूँ, ये ले लीजिए, शुरू करते हैं। सब फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम, मतलब ये तीनों से हमें काफी कुछ पता लग जाता है प्रॉब्लम से कि एक्चुअल में गॉस थ्योरम इस तरह से अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ये चीजें हमें गॉस थ्योरम बताती है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि यू हैव अ सिलेंडर and you have placed this cylinder in uniform electric field. This is your uniform electric field. In this uniform electric field you have placed this cylinder. इस सिलेंडर को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और आपको 2 चीजें पूछ ली। कौन कौन सी? पहली चीज आपको पूछ ली व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सेकंड चीज आपको पूछ ली है
What is charge inside the cylinder? पहले आपको फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर पूछिए, सेकंड आपको चार्ज इनसाइड द सिलेंडर पूछिए। अब फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन E डॉट ds से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर फ्लक्स 5, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और अगर ये फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर ली, अगर इसको मैं इक्वेट कर देता हूं Q बाय एप्सिलॉन नॉट से, Q वहां से Q निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, फ्लक्स कितनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से ध्यान दो, दिस सिलेंडर हैज हाउ मेनी सरफेसेस? इट हैज 3 सरफेसेस। कौन कौन से? वन इज दिस ds3, another one is this ds1, another one is this ds2। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ds3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चला, दिख रहा है आपको फ्लो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एंगल कितने कितने हैं, तो आप कहेंगे सर देखो ds2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 180 का, ds3 के लिए एंगल बन रहा है 90 का, और ds1 के लिए एंगल बन रहा है 0 का। दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो यहां मैं अगर खोल रहा हूं इसको, इट विल बी eds1 प्लस इंटीग्रेशन eds2 प्लस इंटीग्रेशन eds3। आप देख सकते हैं ds1 ds2 ds3 आप देख सकते हैं। तो eds1 में एंगल क्या है? 0, तो E आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ds1 प्लस eds2 में एंगल है 180 का, तो E बाहर, इंटीग्रेशन ds2 cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1, तो ये जो प्लस का साइन है इसको हटा के आप यहाँ कौन सा साइन कर दोगे? माइनस। और eds3 की बात अगर करें, E और ds3 के बीच में एंगल कितना है? 90 है, cos 90, eds cos 90, ये वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा जी, इसको आप E इंटू एस ले लो, इसको भी E इंटू एस ले लो, क्योंकि दोनों एरिया तो सेम है। अगर आप इंटीग्रेट करोगे ds2 को तो भी ये एरिया आएगा, इंटीग्रेट ds1 करोगे तो ये एरिया आएगा, तो ES की वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गई। प्रनाबनूर देखो बेटा, मैं ये बात बच्चों को बोलता हूँ, क्या बात बोलता हूँ, यहाँ देखो फ्लक्स 0 आई है, इसका मतलब ध्यान दे इधर, जितनी लाइनें बेटा एंटर की थी उतनी ही लाइंस अगर लीव कर जाए किसी सरफेस को, पूरे को, अगर मैं पूरे सरफेस की बात करूं, कितनी फ्लक्स है इस पूरे क्लोज सरफेस में, तो तू कहेगा सर 0। अगर मैं तुझे कहूं यहां फ्लक्स कितनी है, क्योंकि यहां फ्लक्स एंटर कर रही है अंदर, सिर्फ इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस की कितनी फ्लक्स है, तू कहेगा सर देखो ds वेक्टर बाहर है, E अंदर है, तो फ्लक्स है -es। अगर मैं तुझे कहूं यहां फ्लक्स कितनी है, सिर्फ इस सरफेस की फ्लक्स कितनी है, तो इस सरफेस की फ्लक्स तू कहेगा सर E भी इधर है, ds भी इधर है, इस सरफेस की फ्लक्स है es। देखो es, कहने का मतलब यहां फ्लक्स नेगेटिव है, यहां फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि ये फ्लक्स एंटरिंग है, ये फ्लक्स लीविंग है। तो अगर मैं अकेले अकेले सरफेस की बात करूं तो फ्लक्स है, लेकिन अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइनें लीव कर रही हैं, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या है? 0 है। तो क्लोज्ड सरफेस की जब भी बात होगी ना प्रभनूर, तो उसमें बेटा जफर एंड प्रभनूर, उसमें बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाइनें क्लोज सरफेस में से सिर्फ कितनी एंटर कर रही हैं, सिर्फ कितनी लीव कर रही हैं। अब मैं सिर्फ क्यों लगा रहा हूं, यहां जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी लीव कर रही है ना,
तो फ्लक्स 0 है। सिर्फ एंटर तो नहीं कर रही ना, सिर्फ एंटर, ओनली एंटरिंग तो नहीं है ना, ओनली लीविंग भी नहीं है। द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग, तो फ्लक्स 0। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि एंटर कर रही है लाइंस 15 और लीव कर रही है 5, तो आप कहेंगे सर इसमें फ्लक्स एंटरिंग 10 है। अगर मैं तुम्हें कहूं इस सिलेंडर में 50 लाइनें एंटर कर रही हैं, 100 लीव कर रही हैं, तो तुम कहोगे सर लीविंग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस है 50 लीविंग, 50 लाइनें लीव कर रही हैं, एंटरिंग की तुम बात ही नहीं करोगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें। आई होप प्रभनुर मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई हो। हाँ जी सर। कितनी लाइनें सिर्फ एंटर कर रही हैं या कितनी लाइनें ओनली लीव कर रही हैं, हमें इससे मतलब होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ लाइनें जितनी एंटर कर रही हैं उतनी लीव कर रही हैं। इसलिए बेटा तू कह सकता है सर फ्लक्स क्लोज सरफेस में से 0 है। अब तू एक कहे सर अगर ऐसा हो कि दोनों सरफेसेस में से लीव कर रही हैं, तो इधर कितनी लीव कर रही हैं 50, इधर कितनी लीव कर रही हैं 50, तो टोटल कितनी लीव कर रही हैं 100, तो तू कहेगा फ्लक्स लीविंग 100 है, फ्लक्स 0 नहीं है, फ्लक्स लीविंग 100 है। इसी तर्ज पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्रभु जी, ये देखिए आपको मैं बताना, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन, ये देखो, ये प्रॉब्लम मेरे पास एक सिलेंडर है, देख रहे हो आप? अपना वॉल्यूम थोड़ा ऑन कर लो, मैं कुछ बात करनी है आपसे। हाँ ये जी क्वेश्चन सर। प्रभनुर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ये तूने करना है क्वेश्चन थोड़ी देर में, मैं 2-3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन 1 मिनट, ये टोटल क्वेश्चन ये है, यहाँ 67 प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ तो ये इसको यहाँ ये पूरा 67 क्वेश्चन फिगर नंबर 1.9 इतना, इसकी फोटो खींच ले, इतने खींच लिए? हाँ जी सर। ओके डन। अब आ जा तू क्वेश्चन पे ध्यान दे। क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि ना ये जो सरफेस है ना, ये हमारा जो सिलेंडर है, इसमें इस पॉइंट से, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ जा रहा है, देख सकते हो आप। ये बोल क्या रहा है, ये इसने ये बात बोली देखो ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई है, 200 आई कैप एन सी, अगर x ग्रेटर देन 0 है, और -200 आई कैप है अगर x लेस देन 0 है। देख सकते हो आप, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है जब आपकी इस तरफ आप देख रहे हो, इस तरफ, ये देखो इस तरफ जा रहे हो आप, इधर E और ds दोनों। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो भी ds के पैरेलल होगा, अगर राइट की तरफ जा रहा है तो भी ds के पैरेलल होगा। आप देख सकते हो जो मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ लीव कर रहा है, दोनों साइडों से प्रभनुर लीव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी, यहाँ ये दिया हुआ हाँ है। जी सर। तो इसमें फ्लक्स अगर आप कहोगे ना, मैं तुझे कहूंगा इस सरफेस की फ्लक्स निकाल, तो कहेगा सर पॉजिटिव आएगी, इस सरफेस की फ्लक्स निकाल तब भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ईडीएस यहाँ दोनों पैरेलल हैं, यहाँ भी ईडीएस दोनों पैरेलल हैं, तो फ्लक्स बेटा दोनों में पॉजिटिव फ्लक्स आएगी, टोटल फ्लक्स ऐड होगी। जैसे यहाँ पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फ्लक्स माइनस होके कट गई, यहाँ देखो इस जो मेरी कॉपी में अगर आप देख सकते हो, ये कट गई दोनों फ्लक्स, क्योंकि एक में एंटर हो रही थी, लीव हो रही थी दूसरे में। पर हमारी जो ये वाली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। प्रभनुर, विल यू बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन? हाँ जी सर। फ्लक्स दोनों सरफेसेस, अगर तो प्रभनुर आ जाती है एक एक सरफेस की फ्लक्स, तो अकेली अकेली इंटू ds करना है, एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटरों को मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है, सॉल्व पूरा हुआ है, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ये करनी है। ये सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी,
क्या ठीक है प्रॉब्लम सर। ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ प्रॉब्लम, बेटा कर लोगे तुम ये? हाँ जी सर, ट्राई करूंगा। ट्राई करके फ्लक्स निकाल के फिर ये बेटा मेरे को सॉल्व करके ना फोटो भेजनी है इसकी, ठीक है? ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ आप। थर्ड क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस करना है वो यहां आपको मैं बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास इस तरह से एक एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से एक्सिस है तीन दी हुई, ठीक है? और इस एक्सिस में यहां पे एक क्यूब दिया हुआ है, इस तरह से क्यूब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो क्यूब है ना, इसके देखो जो क्यूब है ना वो यहां से ओरिजिन से ए डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, और साइड भी इस क्यूब की, जो साइड है इस क्यूब की, ये वाली साइड, ऑल द साइड्स ये भी ए है, ए लंबाई, ए चौड़ाई, ए ऊंचाई, ठीक है? मगर अगर तुम्हें मैं पूछूं ये वाला पॉइंट, तुम कहोगे सर एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है ये वाला, और अगर मैं तुम्हें पूछूं ये वाला कौन सा पॉइंट है, तुम कहोगे एक्स इज इक्वल टू 2a पॉइंट है। सर सही है कि नहीं? क्योंकि a प्लस ए 2a हो गया पॉइंट। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, हमें ये कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड 0 है। अच्छा भाई ऐसे है कि मैं दोबारा एंटर कराता हूँ, टाइम हो गया है, ठीक है? बंद होने वाली है हमारी क्लास, दोबारा आ जाओ।